اللہ 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 اپنے آپ نو پڑھ پھر مندر مسجد بن جدو نفس جاوے تیرا مر پھر نال شیطان اڑ ہو. ہم کبھی مندر جاتے ہیں، کبھی مسجد جاتے ہیں، گردوارے جاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، رب کی تلاش کے لیے، اللہ کی تلاش کے لیے، سچ اور حق کی تلاش کے لیے. ہر جگہ جانے کی ایفرٹ کرتے ہیں مگر نہیں جاتے تو اپنے اندر نہیں جاتے. نہیں کسی چیز کو سمجھ پاتے تو اپنے اندر کی چیز کو نہیں سمجھ پاتے. نہیں کھوجتے تو اپنی ذات کو نہیں کھوجتے. اور پوری دنیا میں ہم گھوم رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ زیارات کے لیے ہو، چاہے وہ عبادات کے لیے ہو، چاہے وہ کلمات کے لیے ہو، چاہے عمرہ اور حج کے لیے ہو. ہم ایک جگہ سے آغاز کرتے ہیں اپنی سفر کا اور اس سفر کو کہاں سے کہاں تک لے کر جاتے ہیں، مگر وہ جو ہم اندر سے ہیں یا جو ہمارے اندر کا سفر ہے، جو اندر کی جو سیر ہے وہ نہیں کر پاتے. ہم لوگوں میں، چیزوں میں تلاش کرتے ہیں حق سچ کو، مگر اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کا جواب اگر آپ کو اللہ کی ذات سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کی ذات کو حاصل کرنا ہے، اس کو پانا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں. ہم اپنی ذات کے ساتھ شاید سچ نہیں بولتے. ہم اپنی ذات کے حوالے سے ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بولنا چاہتے. اس کا ریزن یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم فیس ہی نہیں کرنا چاہتے. ہماری زندگی میں، ہماری دنیا میں جو نارمز بن گئے ہوئے ہیں، جو ٹرینڈ سیٹ ہو گئے ہوئے ہیں، وی آل ہیو بیکم دا فالوورز. اور اگر آپ حق کی بات کو اور سچ کی بات کو فالو کرتے ہوئے، آج کا ہمارا زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے آج کے زمانے میں کوئی حق کا فیصلہ کرنا ہے جو اللہ کی نظر میں ٹھیک ہے، یا کوئی حلال فیصلہ کرنا ہے، یا کوئی پاکیزہ فیصلہ کرنا ہے، تو وہ فیصلہ لینا جو اس وقت ہمارے حالات ہیں ہمارے معاشرے کے، اس میں وہ فیصلہ کرنا لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نسبتاً یہ کہ ہم رانگ پاتھ چوز کریں، شارٹ کٹس چوز کریں. آج کل مائنڈ سیٹ ہمارا یہی ہے کہ بس ہم کسی طریقے سے شارٹ کٹ سے ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، لوگوں کے سامنے بھی بالکل ٹھیک رہیں، لوگوں کو بھی صحیح جسے کہتے ہیں نا کہ دکھیں. اور ہم اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اور اپنا معاملہ ہے، وہ دیکھی جائے گی، وہ جب وقت آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے. when we don't realize it کہ اگر آپ اپنے رب سے جھوٹ کہہ رہے ہیں یا اپنے رب سے نعوذ باللہ کوئی چال چل رہے ہیں یا شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں، تو دراصل آپ اپنی ذات کے ساتھ کتنے انفیئر ہیں. بہرحال ہر جگہ چلے جاتے ہیں، ہر قسم کے معاملات میں، دنیا کے لوگوں کے معاملات میں ہم اپنی انٹرفیرنسز کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب بات اپنی آتی ہے، اپنی ذات کی آتی ہے، اپنے فیصلوں کی آتی ہے، تو اٹ گیٹس ویری ڈیفیکلٹ فار us to take the right decision and the right decision according to the divine. Now coming to آج کا جو ٹاپک میں نے لکھا، I accept. Why? Because ہماری اپنی زندگی میں جو ایک مسلسل جنگ جاری ہے، وہ جاری جنگ اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں کو، ہمارے رب کی جو نعمتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان سب کو ہم تسلیم نہیں کرتے. وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ لوگ جو ہر وقت ایک کشمکش، ہلچل اور بے چینی کا شکار ہیں، ان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ دعا جو ہے وہ بہترین دعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے رب، وہ معاملات، وہ چیزیں، وہ حالات جو ہم نہیں بدل سکتے، ہمیں تسلیم کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور وہ حالات جو ہم بدل سکتے ہیں، ہمیں ان کو بدلنے کی جرت اور حوصلہ عطا فرما.
और इन दोनों में जब फ़र्क आपको पता चल जाता है तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे हालात हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, हमारे जो मामलात हैं, उनमें अपनी लोगों से एक्सपेक्टेशंस, हालात से एक्सपेक्टेशंस, हमारे रिश्तों से एक्सपेक्टेशंस, हमारे सर्कमस्टांसेस से एक्सपेक्टेशंस, इन तमाम चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस की बजाय अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन के वर्ड को एक्सेप्टेंस के वर्ड से तब्दील कर दें तो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन ज़िंदगी हो जाएगी। To make you understand, I would like to give you an example. What is acceptance? देखें, जब हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह हर किसी को ज़िंदगी में एक दफ़ा कम से कम मौका ज़रूर दे के उसको कबूल है कहना नसीब हो, जिसको हम शादी कहते हैं, जो एक बेहतरीन खूबसूरत रिलेशनशिप है। और हर चीज़, कोई भी रिश्ता जब होता है तो उसके कोई पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, और उन्हीं को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो चीज़ें बेहतर होती हैं। नहीं करते, फ़ाइट करते हैं तो सारी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी एक मुसलसल जंग में गुजरती है। नाउ व्हाट हैपन्स, जब हम सब वाकिफ़ हैं कि निकाह जब होता है, जब निकाह होता है तो उस निकाह में जो दो फरीक होते हैं जिनका आपस में निकाह होता है तो सारे मामलात पेज के ऊपर होते हैं। बट व्हेन द मौलाना comes to a woman, comes to a woman and goes to the man, तो क्या जुमले होते हैं जो हम कहते हैं? हम कहते हैं कबूल है, I accept। इसी तरह से बंदे के पास जाते हैं तो हम कहते हैं कबूल है, I accept। Now, when we are saying in a relationship that I accept, this is the beginning of our relationship, and when we say I accept, that means हमारी expectation कोई नहीं है, ज़ीरो। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ इस बात से हो रहा है, इस चीज़ से हो रहा है कि जो भी है, जैसा भी है, जो भी हालात हैं, जैसे भी इसीलिए कहते हैं कि शादी करने से पहले या किसी भी रिश्ते में जाने से पहले आप एक दफ़ा अगले बंदे को परख लें, उसके बारे में जान लें। कई दफ़ा इंसान पहली मुलाकात करता है, पहली गुफ्तगू करता है, बात करता है, और उस शख्स को मिलते ही, बात करते ही, गुफ्तगू सुनते ही, उसका मिजाज देखते ही पता चल जाता है कि ये बंदा क्या है और ये बंदी क्या है। कई दफ़ा हम 20-20 साल अपनी ज़िंदगी के 2 दहाइयाँ भी एक शख्स के साथ गुजार लेते हैं, मगर हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और जब नहीं समझ पाते तो फिर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। बिगिनिंग में ही रिश्ते के कॉन्फ्लिक्ट्स और वो सारे मामलात हो जाते हैं। लेकिन ये मामलात ठीक कैसे हो सकते हैं? ये मामलात बेहतर कैसे हो सकते हैं? पहले तो हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिश्ते में जाने से पहले अगर इस बात का फ़ैसला कर लें कि हमें क्या ये चीज़ हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, जब आपकी क्लैरिटी हो जाती है, when you are clear in your head that this is exactly what I want, so that clarity is the most important thing in life। ये क्लैरिटी कई दफ़ा सारी ज़िंदगी साथ रह के नहीं मिलती, और कई दफ़ा ये क्लैरिटी किसी शख्स को एक दफ़ा मिलने के बाद ही आपको वो क्लैरिटी हो जाती है। नाउ वंस यू आर क्लियर एंड देन यू एक्सेप्ट एंड यू से आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। मसला हमारे साथ तब होता है कि जब हम मुंह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी इसको अगर समझने के लिए हम इस तरह से कहें कि हम अपनी ज़बान से ये कह देते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने जो कहा यहाँ से कहा, हमने अपने दिल से उसको एक्सेप्ट नहीं किया,
हमने अपने दिल से उसको माना नहीं, हमने अपने दिल से उसको तस्लीम नहीं किया। क्योंकि ये जो रिलीजन, जो भी कोई किसी भी रिलीजन का आप हिस्सा हो, इट्स ऑल अबाउट सबमिशन, इट्स ऑल अबाउट तस्लीम। एंड इवन रिलेशनशिप, सबसे बेहतरीन रिलेशनशिप हमारा और पहला रिश्ता अल्लाह की ज़ात से होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी तरह से आपने एक्सेप्ट कर लिया उस रब को, उस ज़ात को। अब जब आपने एक दफ़ा एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो एक पूरी लिस्ट है उन चीज़ों की, वो एक एक करके आप जानते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं एक्सेप्ट करना, कुछ चीज़ें आपके लिए आपको लगता है कि ये तो मेरे लिए कोई मसला नहीं। मगर लाइफ इज़ ऑलवेज़ अबाउट अ पैकेज। चाहे वो रिश्ता आपका अल्लाह के साथ हो, चाहे वो रिश्ता आपका अपनी दोस्ती का रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो, इसी तरह से आगे बच्चों का रिलेशनशिप हो। सो इट्स अ पैकेज डील। वंस द पर्सन सेज दैट यू आर हिज वाइफ और यू आर हर हस्बैंड, उसके बाद दिल से जिसने एक्सेप्ट किया होता है ना, जिस तरह से कलमा पढ़ते हैं, तो जब दिल से कोई एक्सेप्ट कर लेता है फिर, और वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाता है कि आई सबमिट, फिर आहिस्ता 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 चीज़ें सबमिट होनी शुरू हो जाती हैं और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट ये है दैट यू हैव एक्सेप्टेड, आपने उसको तस्लीम कर लिया है, आई हैव सबमिटेड, और फिर अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। इन मैरिज व्हाट हैपन्स, इन मैरिज हम जो एक्सेप्ट करते हैं कबूल है, हमें लगता है सिर्फ ये कबूल कह देना इज़ इनफ, जबकि कबूल एक वर्ड है, वो उसके साथ एक पैकेज आ रहा है दैट दिस इज़ द मैन, दिस इज़ हिज फैमिली, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अटैच्ड टू दैट मैन। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, आई एक्सेप्ट हिज नेचर, आई एक्सेप्ट हिज क्वालिटीज़, I accept his negativities, I accept his family, I accept his circumstances, his situation, everything. मगर हम अपने रिश्तों में सौदे कर रहे होते हैं, हम अपने रिश्तों में कंडीशंस रख रहे होते हैं। I will accept you if you will do this for me. I will accept this if you will accept this. ये सौदा और ये शर्तें अगर आप अल्लाह के साथ भी रखें तो वो रिश्ता नहीं होता। हम अल्लाह से जब गुफ्तगू करते हैं, हम जब अल्लाह से बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ए रब, मेरा ये काम कर दे तो मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा, मेरा ये काम कर दे तो मैं ये करूँगा। मैं वैसे ही क्यों नहीं कर सकती, मैं वैसे ही लोगों को क्यों नहीं खिला सकती? क्यों ये हमारा अल्लाह के साथ कोई सौदेबाजी हो रही है? क्या सौदा कर रहे हैं हम, क्या बेच रहे हैं उसके सामने, किस चीज़ की तजारत कर रहे हैं? These are unconditional relationships. जब हम अल्लाह से सौदेबाजी पे उतर आते हैं तो फिर अल्लाह से ज़्यादा बेहतर सौदा करने वाला कोई नहीं होता। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन आवर रिलेशनशिप्स। आप देखें बहुत सारी ऐसी शादियाँ होती हैं कि जिनकी बुनियाद जब रखी जा रही होती है, जब वो मामलात हो रहे होते हैं दुनियावी लिहाज से, जब एक जोड़ा जुड़ रहा होता है, तो हमारी पहली शर्त ये होती है कि हमारे नाम कोई घर किया जाए, हमारी बेटी के, ठीक है या बिल्कुल सही है, आपका हक है, आप करें। मगर क्या गारंटी होती है इस चीज़ की कि आप आई डोंट वांट टू यूज़ दोज वर्ड्स, मगर आप क्या कर रहे हैं? हमारे लिए मिसाल कौन है, हमारे लिए हीरो और रोल मॉडल कौन है? वो जो वजह वजूद कायनात है। उन्होंने जब अपनी बेटी का, अपनी लख्त जिगर का, अपनी नूरे नज़र का, अपने दिल के चैन का, अपनी ज़ात का जो टुकड़ा, जब उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया आक़ाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने उसमें क्या शर्तें रखी, क्या चीज़ें रखी, क्या मांगा? जब हम उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं, जब हम उनसे इश्क का दावा करते हैं, तो फिर हम इन
دنیاوی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر جب ہم ان دنیاوی چیزوں میں پڑتے ہیں تو پھر وہ امام آقا فرماتے ہیں کہ جس نکاح کا، جس شادی کا، جس رشتے کا بار جتنا کم ہوگا اتنا بابرکت ہوگا، مگر ہم اپنی زندگیوں میں سودے بازی کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں ایک تو یہ سودے بازی والی بات ہو گئی وچ از ویری ویری امپورٹنٹ، اور دوسری چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم منہ زبانی صرف یہاں سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. وی جسٹ سے آئی ایکسیپٹ the way we say لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. when we say this with our hearts کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر ہمیں اپنے دلوں میں بنے ہوئے تمام جو معبود، جو بت ہم لوگوں نے بنائے ہیں ان کو توڑنا لازم و ملزوم ہے. پھر ہمیں صرف اس ذات کو دیکھنا ہے. مگر ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈز when it comes to life بالکل اور ہیں. ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو پس پشت ڈال کے تو اس دنیا میں ہم سروائیو کر سکیں ہم کرتے ہیں. ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے لیوش پروگرامز، ایسے ایسے لیوش فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل اللہ کی دوری کا باعث ہوتے ہیں، مگر ہم کر رہے ہوتے ہیں. So now when we get into a relationship and when you say I accept، مجھے قبول ہے، وہ مجھے قبول ہے کرنے سے پہلے سوال کریں کہ کیا وہ شخص آپ کو قبول ہے؟ کیا اس شخص کی فیملی اور اس کی معاملات آپ کو قبول ہیں؟ کیا اس کے سرکمسٹانسز آپ کو قبول ہیں؟ کیا اس سے جڑی اس کی عادات آپ کو قبول ہیں؟ کیا اس شخص سے کی جو مصیبتیں ہیں، اس شخص کی جو برائیاں ہیں یا جو دنیاوی اس کے مسئلے مسائل ہیں، کیا آپ نے ان کو بھی قبول کیا ہے؟ یا آپ صرف اور صرف اس کے پیسوں کو قبول کر رہے ہیں، آپ اس کی شکل کو قبول کر رہے ہیں، آپ اس کے بینک بیلنس کو قبول کر رہے ہیں، آپ اس کی گاڑیوں کو قبول کر رہے ہیں، آپ اس کے جو خوبصورت بہترین معاملات جو دکھ رہے ہیں اور جو ہر چیز جو خوبصورت نظر آ رہی ہے آپ صرف اس کو قبول کر رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. دس از ون آف دا ریزنز ہمارے رشتے خوشیوں کے ساتھ شروع تو ہو جاتے ہیں بٹ وہ توڑ نہیں چڑھتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، ہمارے ریزنز رائٹ نہیں ہوتے ٹو میری سم ون. وین وی گیٹ میریڈ، وین وی سے آئی ایکسیپٹ، وین وی سے مجھے قبول ہے، اور ہم اس کو رائٹ ریزن کے لیے جب کرتے ہیں، بہترین اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے کہ ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک ساتھی چاہیے، ہمیں اس دنیا میں عزت کے ساتھ حلال طریقے کے ساتھ رہنے کے لیے ایک شخص چاہیے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے کاموں کے لیے، اسپریچول اپلفٹنگ کے لیے، لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بننے کے لیے، اور اس دنیا میں اس زندگی کو پاکیزگی سے گزارنے کے لیے میرا مددگار ہو یا میری مددگار ہو. ناؤ آئی ایم ناٹ گوئنگ any further without discussing امام علی's that sentence جب آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی کے بعد جب امام علی سے نیکسٹ روز ملے، اگلے روز ملے، تو آقا نے یہ سوال کیا کہ آپ نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. یہ ہے مقصد زندگی میں. کسی کے ساتھ جب آپ کا رشتہ جڑ رہا ہو، جب آپ اسے کہیں آئی ایکسیپٹ، مجھے قبول ہے، تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کیا یہ شخص اللہ کی مخلوق، خدا اور خدائی کے لیے، خدا کی اطاعت کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے، اور عبادت کا مقصد ہرگز صرف اور صرف
जाए नमाज पे की जानी इबादत नहीं है, खिदमत खल्क भी इबादत है, लोगों के काम आना भी इबादत है, लोगों के साथ सच बोलना भी इबादत है, लोगों को उनका हक देना भी इबादत है। क्या ये शख्स इन तमाम कामों में मेरा मददगार साबित होगा? अगर तो वो शख्स आपको यूँ एहसास होता है कि आपका मददगार साबित हो सकता है, आपका मददगार होगा इन तमाम चीज़ों में, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन रीज़न नहीं है किसी को आई एक्सेप्ट कहने के लिए, किसी शख्स को कबूल करने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर रीज़न्स नहीं है। लेकिन अगर आपका रीज़न अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना है, आपका रीज़न अपने नाम जायदादें करवाना है, आपका रीज़न इस दुनिया में ये बताना है कि ये मेरी मियाँ बीवी है या ये मेरा मियाँ है और शो ऑफ़ करने के लिए आप बड़े बड़े ख़ानदानों में शादी कर रहे हैं, ये रीज़न्स हैं, तो हो सकता है कल को उसकी शक्ल वैसी ना रहे, हो सकता है उसका कल को स्टेटस वैसा ना रहे, हो सकता है उसका कल को बैंक बैलेंस ना वैसा रहे। अगर आपने इन चीज़ों के लिए शादी की थी, then you definitely made a wrong decision and it's not going to be a successful decision for you। फिर सारी ज़िंदगी हर रोज़ हर लम्हे आपकी लड़ाइयाँ भी होंगी, आपकी मार कुटाइयाँ भी होंगी, आपके ख़यालात नहीं बदलेंगे। कोई एक शख्स भी मुसलसल कोशिश कर रहा हो तो एक लम्हा आता है ज़िंदगी में जब वो कर करके कोशिश थक जाता है। लेकिन अगर आपकी रीज़न्स राइट हैं, इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर खुशनुदी रब्बानी, इफ़ यू आर डूइंग इट कि अल्लाह की जो दुनिया में अल्लाह ने हमें ये ज़िंदगी दी है, इसमें हम लोगों के काम आए, हम इसमें लोगों का हक़ अदा करें, लोगों के लिए आसानियों का बायस बने और हम दोनों एक दूसरे के लिए मददगार साबित हों। मैं इस चीज़ के लिए उस शख्स को या वो शख्स इस चीज़ के लिए मुझे कबूल कर रहा है, दिस डेफिनेटली इज़ द राइट रीज़न। जब आप इस चीज़ के ऊपर कोई फ़ैसला कर लेते हैं, किसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं एंड देन यू से I stand with you, I know the world is against us, I know। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब वो कोई ऐसा अच्छा फ़ैसला करने जा रहे होते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करने की बजाय डिस्करेज कर रहे होते हैं। जब आप एक जगह पे यहाँ आके बैठ जाएं, यहाँ खड़े हो जाएं, फिर आपको पता है कि आप हक़ पे हैं, आपको पता है आप सच को कबूल कर रहे हैं, आपको पता है आप हक़ को कबूल कर रहे हैं, आपको पता है आप वज़ादारी को कबूल कर रहे हैं, आपको पता है कि आप अमानतदारी को कबूल कर रहे हैं, आपको पता है कि आप हक्कानियत को कबूल कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप ऐसे को कबूल कर रहे हैं जो लोगों का हक़ देने वाला है, आप जानते हैं कि आप ऐसे को कबूल कर रहे हैं जो कभी झूठ की बुनियाद पे कुछ नहीं करेगा। फिर आप जब इन तमाम चीज़ों को जान के पूरी कायनात आपके ख़िलाफ़ हो जाए, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो एक जुमला कि ए अल्लाह, जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया और जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया। अगर आपका फ़ैसला अल्लाह को पाने के लिए है, अल्लाह की राह में हक़ के लिए खड़े होने के लिए, फिर सारी कायनात सारी दुनिया भी अगर आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो बस फिर आपके लिए अल्लाह की ज़ात और उसका महबूब और उसकी आल औलाद काफ़ी होती है। फिर आप लोगों के मोहताज नहीं होते, फिर आप अपनी ज़िंदगी को, अपने फ़ैसलों को अपने सर को बुलंद करके जीते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फ़कत खुशनुदी रब के लिए हुआ है। दैट्स वाई व्हेन वी एक्सेप्ट, व्हेन वी से कि मुझे ये चीज़ कबूल है, तो फिर उसको उसकी अच्छाइयों बुराइयों, फिर उसको उसके पिछले बैगेज के साथ, फिर उसको हमारी हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ साथ चल रहा होता है, बचपन से लेके 20 साल तक, बचपन से लेके 30, 25, 40 साल तक हम एक भरपूर ज़िंदगी लेकर जी रहे होते हैं। अगर कोई दो लोग किसी को एक्सेप्ट करते हैं, फिर होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें, क्योंकि everyone is carrying a baggage, and when you accept people with their baggage, that is the beauty। और फिर आप चाहते हैं कि एक साफ स्लेट के साथ आपके साथ एक नया रिश्ता कायम किया जाए, तो ऐसे रिश्ते बन जाते हैं और बहुत खूबसूरत बनते हैं, मगर निभते नहीं हैं।
ज़्यादा देर निकते नहीं हैं. These are the realities of life. जब आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं फिर आप उससे जुड़ी हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. और ये एक्सेप्टेंस के ऊपर इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल मोर बट नॉट नाउ. I would like to wind up this, but the thing is एक्सेप्ट जब आप कर लेते हैं ना तो आपकी जंग जो है अपनी ज़ात के साथ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है. मगर जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी को और हम चाहते हैं कि अगला बंदा हमारी तरह हो जाए, हम जैसा चाह रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों को, मगर हम अपने रिश्तों में जब अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर चलाना चाहते हैं, दैट्स द टाइम व्हेन एवरीथिंग गोज़ अपसाइड डाउन हो जाती हैं सारी चीज़ें. सो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग, जो रिश्ता है उसकी बुनियाद है आई एक्सेप्ट. जो रिश्ता है उसकी बुनियाद है हम कबूल करते हैं. लोगों को उनकी अच्छाइयों, उनकी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करें और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हर चीज़ बेहतरीन हो जाएगी. अपना बेहद ख्याल रखें. Look after yourself and accept people the way they are. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Par Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.